morning, student. Okay, last lecture I have explained about the application of derivative. I am going to next one, that is the maxima and minima. Another application of derivative, that is the maxima and minima. So today I will discuss about the maxima and minima and the maximum value and the minimum value of the function. So before the maxima and minima goes to the problems, first we have to make concept clear about the maxima and minima. How does the maxima and minima produce? How can we define the maxima and minima? At which value the function is said to be maxima and minima? So we'll discuss one by one. First of all, I suppose that I am discussing about the maxima and minima. Suppose that you have given the function y equal to f of x. Okay, that is the function y equal to f of x for this function, and we draw the graph. Suppose that this is the graph of y of f of x. First we draw the graph of the function y equal to f of x. Okay, this is the graph of the function and its domain is given you open interval AB. Okay, and this is the open interval. In its domain, open interval of AB, you can observe that there is no end points, there is no, just we have to open interval. Just we imagine this one. So in this way, suppose that this is the function, we draw the graph. You can observe that when we draw the graph, the maximum value, at which point y attain the maximum value, you can see that a has this much. This is the value of the function at a. And if we goes to the right side, when we go approach to the this side, we will get the maximum point. This value at C, the value of the function at the point C attain the maximum value. You can see that value of the, what the value maximum means, y, value of the function, that is called the maximum and minimum. So function attain maximum value at the point C. After the C, it will again reduce. It will again start to reduce up to B, near about B. There is no B including. So in the open interval, function attain the maximum value at point C. So that C point is called the maxima, point of maximum, and the value of the function at the point C, that is called the maximum value of the function. You can see that there is the C is the point, the value of the at C y equal to f of C. If we put the value of in place of x, y equal to fc, that is the maximum value. At which point the value of the function attain maximum value, that is called the point of maxima. Other point give maximum point. Okay, you can see that f of c, if we give to the all values in the domain, अगर हम ए बी में बहुत सारी वैल्यूज़ दें, इसको बहुत सारी वैल्यू ए से बी में जाने, यहाँ से आगे बढ़ते जाएं, ए के बाद बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी. कहाँ तक जाएंगी? बी के पहले तक. बी से पहले और ए के बाद तक जितनी भी वैल्यू हम दे सकते हैं फंक्शन में देंगे, तो उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू. तो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम मिलती है, आप देखते हैं यहाँ पे सी है, तो सी पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. तो अगर हम देखें तो सी पे जो वैल्यू फंक्शन की, वो क्या है? एफ ऑफ सी. क्या कहलाएगी वो? सी. एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एन. तो इसकी डोमेन में ए बी के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगी, उन सब में अगर हम वैल्यू रखें एक्स, तो उसमें जो एक पॉइंट ऐसा है एफ सी, जिसकी वैल्यू सभी एक्स से ज़्यादा होंगी. इन सब में वैल्यू जितनी भी होंगी, उन सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? एफ ऑफ सी. इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है ना ये. और सी क्या है? ए बी के बीच कोई एक पॉइंट है, यानी देख रहे हो हम ना, सी क्या है? ए से बी के बीच में एक कोई वैल्यू है, सी पॉइंट. कहीं पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी. तो आप देख रहे हो ना, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? सी पॉइंट पर. एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए बी एंड वेयर सी बिलोंग्स टू ए बी फंक्शन. ओके, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम. सपोज दैट वी अगेन ड्रॉ द ग्राफ अनदर फंक्शन, that is the f1x. Suppose that we have to draw that. Again we draw the y of f of x. Similarly, that is also another function. Suppose that y of f dash x. Suppose that another function. If we draw this way, and you can take function is defined for in open interval in its domain x
belongs to AB. Function defined for open interval a to b. There is no, you can see that there is no end points, so we can't be do. So we can say that when we go through from a to b, when we go through the points a to b, when we can observe that a, that is the value of the, after the a, that is function is going to reduce and reduce up to c, then will again start to increase up to b. So which value is minimum? So जैसे जैसे हम x की वैल्यू हम रखते हैं फंक्शन में और a से b की ओर जब जाते हैं राइट साइड में इस तरफ में, तो आप देखते हैं एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसपे फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है. किस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ये वैल्यू आएगी, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, फिर ये आएगी, इस पॉइंट पे ये वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे ये आएगी, और लास्ट में ये पॉइंट पे इस पे आएगी. इसके बाद इससे छोटी होती जाती है, इसके बाद छोटी नहीं होती है. ठीक है, इसके बाद क्या होगी, आगे जाएगी, आगे जाने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व इजिली द मिनिमम वैल्यू एट विच पॉइंट वी गेट एट द पॉइंट सी, वी गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सी पॉइंट पर हम सबसे कम वैल्यू फाइंड होती है, सबसे कम वैल्यू मिलती है. तो इसको क्या बोलेंगे, दिस वैल्यू दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू. दिस वैल्यू फ्रॉम यहाँ टू दिस इज कॉल्ड द एफ डैश सी, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच पॉइंट एट द पॉइंट सी. सो एफ ऑफ सी, you can say f dash c, f dash c is greater than f dash x. f dash c इन जो भी जितने भी फंक्शन हैं उनमें देख रहे हो सबसे कम वैल्यू जो किस पॉइंट पे मिल रही है, c पर. तो ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि c पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू जितने भी x पे हैं फंक्शन के अंदर उन सब में सबसे छोटी है. दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन फॉर एवरी x बिलोंग टू ab. जितने भी ए बी के अंदर हैं, डोमेन क्या है इसकी ए टू बी ऊपर इंटरवल में. सो फंक्शन में है मोर देन वन मैक्सिमा. यहाँ पे तो हमने अभी वन मैक्सिमा और वन मिनिमा मिला है. आगे के जैसे कोई कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा भी फंक्शन क्या होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट पर. ठीक है, जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट वन, ड्राइंग द सच एग्जाम्पल फॉर द लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द, बहुत सारे पॉइंट हमें मैक्सिमा मिनिमा के मिलते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे, इसलिए उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. बहुत सारे उसके अंदर आसपास, उसके आसपास बहुत सारे मिनिमम वैल्यूज मिलेंगे, तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं उसको. तो हम अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. Suppose that if function is given you y equal to f of x, that is the function y equal to f of x. A function is given you and defined for the in its domain, real value domain. So how can we define? Suppose that अब इससे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें बताया था हमने किसी ग्राफ में भी उसमें सिर्फ एक ही मैक्सिमा था और एक ही मिनिमम पॉइंट था. अब यहाँ पे जैसे हम ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, आप देखते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में आप देखेंगे सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये है. ठीक है, यू कैन सी दैट. ओके, इन दिस वे. सपोज ये पॉइंट है,
ये पॉइंट है C2, C1, C2 and C3 and C4 एक्सेट्रा। ये कोई फंक्शन है y ऑफ x का। अब देख रहे हैं इसमें एक डिफरेंट टाइप का एक एग्जाम्पल है। तो जब हम C1 है तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आएगा, थोड़ा सा इस तरफ जाएं, इस डोमेन को अगर हम डिफाइन कर दें, इसको क्या बोलेंगे हम, C1 माइनस एच, इसको क्या बोलते हैं हम, C1 प्लस एच, दैट्स पॉइंट। और इसमें अगर अटेंड करें तो इसमें इंटरवल में सबसे बड़ा जो वैल्यू है, you can observe that in this interval which point gives the maximum value, C1, you can observe that maximum value है। अगर हम इससे थोड़े अगर हम इसके डिफाइन करते हैं डोमेन, ये डोमेन सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की डोमेन ले लें, और इस डोमेन में हम क्या है आपसे फंक्शन की वैल्यू, इनमें सबसे बड़ी क्या है, C1 पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, इस पर कम मिलती है, इस पर भी कम मिलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूरे डोमेन में क्या सबसे मैक्सिमम पॉइंट यही होगा, C1। Suppose that we have defined the domain in this one, restrict the domain in this one interval, then the maximum value we can get at the point C1। ठीक है, इसी तरह इस पे भी जा सकते हैं आप लोग। C2 है, C2 में यहाँ पे भी एक कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, तो C2 अगर थोड़ा सा कम जाए, C2 माइनस एच, और यहाँ पे जाएं C2 प्लस एच, तो इस पे आपको देंगे तो सबसे कम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, C2 पर। यू कैन सी दैट दिस वैल्यू इज मिनिमम देन ऑल अदर वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल। इस तरह आगे भी जाएंगे तो बहुत सारे इंटरवल ऐसे हैं जहाँ पे हमें ओके, so I am telling about that in the interval this one C1 plus minus h and C1 plus h, we observe that easily that which is the maximum value. You can observe that C1 is at the point C1 we get maximum value. Similarly in the second interval C2 minus h and the C2 we define the interval C2 minus h. Suppose that this was the interval. In this interval you define this one, that is at the point this one, and these are at this point and this the point. Among all this interval you can observe that among these interval you observe that which is the point, which point gives us the maximum value of the function, which point of the give us minimum value of the minimum value of the function, given function. So you can observe that, हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ इस इंटरवल में देखेंगे इसके डोमेन में जो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होती है वो C1 पॉइंट पे मिल रही है ना, विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू एट विच पॉइंट, एट C1 पॉइंट गेट द फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू मेक्स अ पीक, दैट इज कॉल्ड पीक्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पीक्स बोलते हैं। जो आप हाईएस्ट जाती है ना, जैसे माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन जैसे आगे बढ़ती है तो हमको बहुत सारे पीक्स दिखते हैं हमको ना। वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीक्स in the mountain series when we go through the hilly areas. Similarly you can observe that there is different peaks, peak 1, peak 2 and peak 3 similarly. And downside when we go in a hilly area we go that we also observe that the different kinds of valleys we observe. Similarly here also valleys you can see, यहाँ पे भी वैलीज हैं, देखिए एक वैली ये है, एक वैलीज ये है, वैली 1, वैली 2, वैली 3। तो पूरे फंक्शन में बहुत सारी वैलीज और पीक्स हमको मिलती हैं। तो ऐसे पॉइंट इन वैलीज और पीक्स में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड द वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द वैल्यू ऑफ मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ओके, सो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे C1 माइनस एच, इस इंटरवल में ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ पे C1 पर। इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे क्या देख रहे हो आपको, मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 अगर हम इसको इंटरवल में इफ वी डिवाइड द पॉजिटिव वाई एक्सिस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नंबर, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट गेट द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन एट द पॉइंट C1 अमंग ऑल वैल्यूज, है ना। सो सिमिलरली वी कैन गो थ्रू द सेकेंड वन
in the values that you can get the minimum value C2 minus h and the C2 plus h. This point is in the, among these interval we can get the minimum value. Which is the minimum value? C2 is the get the minimum value. सबसे जो कम वैल्यू से कहाँ पर मिलती है? सबसे माइनस में देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, यहाँ 6 तक है, -6 है ना. यहाँ अगर हम इसको इफ वी डिवाइड द negative y-axis in the value in the interval in the number point, if we define for the numbers integer, negative integer, then we can get the minimum value at -6 according to this rule. So which is the minimum? C2 gives the minimum value, so that is called the point of minima, and the value of the function at the point C2 is called the minimum value of the function. See, okay, so I am discussing about the which point give us the maximum value, which point give us the minimum value. इस इंटरवल में अगर हम देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए, यहाँ पे क्या है, मिनिमा हो रहा है. मैं यहाँ क्या है, मिनिमा. इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वाली, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राफ क्या है, मिनिमा है. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है, C2 पर. तो सो वी कैन से दैट फर्स्ट वन FC1 इज ग्रेटर देन FX. तो इस पूरे इंटरवल में, कौन सी इंटरवल में, इस इंटरवल C1 माइनस h और C1 h, ये दो हमारे पॉइंट्स हैं. इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा किस पर मिलती है, C1 पर. देखें C1 जो है इस पूरे फंक्शन की डोमेन में सबसे, जितने भी x हैं, जितने भी x इनके बीच में x की वैल्यू क्या लगेगी ना ये. सो जितने भी x हैं, जितने भी वैल्यू x की है, वो उन सब में सबसे बड़ा जो है वो क्या है, f ऑफ C1. फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी किस पर है, C1 पर. तो then C1 is called local maxima and f of C1 is local maximum value at C1 point ना. That is called the point of maxima, local minima, local maxima, and this value is called the local maximum value. That is equal to, I think ना, अगर ग्राफ से देखें तो 7-8, around 7-8. इसी में similar to f of C2, यहाँ पे देखेंगे FC2 less than f of x for every x belong to C2 minus h, C2 plus h. अगर C2 में देखें हम, या एक दूसरा पॉइंट है, इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू का विच इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द पॉइंट, विच इज़ द लीस्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शन दैट विच वी गेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड C2 है ना. C2 पे हम देखेंगे, C2 पे सबसे कम वैल्यू जो किस पे मिल रही है, C2 पॉइंट पे. बाकी सब में तो देखो यहाँ, इसमें यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे इतना, इस पॉइंट पे इतना, इसके बाद सारी वैल्यू सब छोटी हो रही है ऐसे. सबसे ज़्यादा छोटी कौन है, सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू कौन है, मैं, दैट इज कॉल्ड द C2. FC2 is less than among all values of x in the interval C2 minus h और C2 plus h. इस तरह बहुत सारे इंटरवल में हम लोग जब जाते हैं तो हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलते हैं. इसको इस इंटरवल में ये मैक्सिमम है, इस इंटरवल में ये मैक्सिमम है ना. अगर जाएँ इस इंटरवल ये मैक्सिमम है, इस इंटरवल में ये मैक्सिमम है, तो बहुत सारे यहाँ पे लोकल मैक्सिमा. इसलिए हमको क्या बोलते हैं हम, लोकल मैक्सिमा. इस एरिया में ये इसका लोकल मैक्सिमा है, इसमें ये इसका लोकल मैक्सिमा है. इस अपने एरिया में जो सबसे बड़ा है, दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा. ठीक है ना. तो इसलिए इसका नाम है लोकल मैक्सिमा. जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे तो उसका मतलब है मैक्सिमा या मिनिमा का, जब भी हम बात करें सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा, तो उसका लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा ही होता है. चाहे पर्टिकुलर इंटरवल में ये हम जैसे लोकल मिनिमा बोले, या इसमें अगर इस इंटरवल में इसको बोले लोकल मैक्सिमा, तो इसका मतलब मैक्सिमम ही है, मैक्सिमा ही है इस इंटरवल में. ठीक है ना. इसके बाद आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं. लेकिन जब एक पर्टिकुलर हमें इंटरवल दिया जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा. लेकिन हम देखें पूरे फंक्शन में, आप देखेंगे ये भी एक मैक्सिमा है इस इंटरवल में, ये भी एक मैक्सिमा है इस इंटरवल में, ये भी एक मैक्सिमा है इस इंटरवल में. लेकिन पूरे फंक्शन में जो सबसे, ये पूरा फंक्शन कहाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक, दिस इज ऑल्सो अ मैक्सिमा, दैट इज ऑल्सो अ मैक्सिमा, दैट इज ऑल्सो इन दिस इंटरवल ए मैक्सिमा. सो विच इज द मैक्सिमम? So we can observe that in the whole, throughout the whole function for all y of f(x), that is the graph of y of f(x). ठीक है. So which is the highest, at which point they get the highest value of the function throughout the whole domain. यहाँ से लेकर लास्ट तक के कोई पॉइंट है, वहाँ तक अगर हम देखें, सपोज यहाँ तक मान लीजिए, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू आप देख रहे हो ना, सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू यहाँ मिलती है. किस पॉइंट पे मिल रही है, C1 पर. तो पूरे फंक्शन में थ्रू आउट द फंक्शन देन वी गेट द वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ना, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसका मतलब क्या है एफ ऑफ C1. It means f of C1. So f of C1, yeah, that is called the, that is f of C1, that is the f of C2. This value is f of C2, this value is called f of C1, this value is called f of C3, this is called f of C4, similarly that is C5, f of C1. So you can observe that which is the highest value, that is this one. So the among all, तो ये भी हाईएस्ट है, ये भी पीक है, ये भी पीक है, ये पीक है ना, बहुत सारी पीक्स बन रही हैं, ये भी मैक्सिमम है, ये भी इंटरवल मैक्सिमम है. तो इन पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज कॉल्ड ये वाली, तो दैट इज एफ ऑफ C1. तो एफ ऑफ C1 इज देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इट्स डोमेन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, आई एफ ऑफ C1. द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन, डोमेन में सबसे पूरी डोमेन, पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरे फंक्शन की, मेन फंक्शन की, ये कि यहाँ से फंक्शन में डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या करी थी हमने, रेस्ट्रिक्ट कर दी थी. लेकिन थ्रू आउट द डोमेन अगर देखें पूरे फंक्शन में सबसे मिनिमम, देखो इसकी वैल्यू यहाँ तक है, इसकी वैल्यू यहाँ तक है, इसकी वैल्यू और नेगेटिव हो गई है, इसकी वैल्यू यहाँ तक है ना. तो नेगेटिव ये और ज़्यादा नेगेटिव है, ये थोड़ा और कम नेगेटिव है, और कम होती गई है. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है इस पॉइंट पर. एफ ऑफ C2 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इट्स डोमेन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम, आई एफ ऑफ C2. इज दैट क्लियर. इसके बाद हमें कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसमें क्या करते हैं, हमें यहाँ पे हमारे फंक्शन का ग्राफ हमें ड्रॉ कर लिया. सम टाइम वी आर अनएबल टू ड्रॉ सम पर्टिकुलर फंक्शन टू ड्रॉ द ग्राफ. यार वी कैन ऑब्जर्व इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ विच पॉइंट गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू, विच पॉइंट गिव अस द मिनिमम वैल्यू, विच इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड विच इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. सो वी कैन ईजिली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ग्राफ से तो हमने समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सम टाइम वी आर अनएबल टू ड्रॉ द ईच ऑफ द फंक्शन टू ड्रॉ द ग्राफ. सो वी आर नॉट एबल टू से डायरेक्टली दैट इज विल लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. सो हाउ कैन बी ऑब्जर्व, तो फॉर दैट वैल्यू वी हैव टू ड्रॉ द सम स्लोप, यू कैन से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मीन्स स्लोप, डिपेंड अपॉन स्लोप. हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं इसके लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए. देख रहे हो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy by dx. व्हाट डज द मीन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, dy by dx. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप, दैट इज ऑल्सो अ f dash x. फर्स्ट डैश, if we put the single dash that means first derivative test. If we put the double dash it means second derivative test. So we have to apply only first dash, first derivative test. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों करते हैं हम, ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हमको ये बताता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है. जब हम देखेंगे, आप ये ग्राफ देख रहे हो, इसका एक ऑब्जर्वेशन है. देखिए यहाँ पे C1 पे जहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे, वो क्या होता है, उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0. देख रहे हो ना पे पैरेलल लाइन है ना, जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करा हमने C1 पॉइंट पर, दैट लाइन इज पैरेलल टू द, व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट एट द पॉइंट C1, दिस टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड हेंस स्लोप विल 0. स्लोप इक्वल, पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है ना. अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्लोप विल बी 0, dy by dx. हमने इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर बताया था ना, स्लोप टेंजेंट नॉर्मल बताया, तो उसमें क्या था, dy by dx इक्वल टू 0. कब, जब वो लाइन टेंजेंट पैरेलल होती किसी लाइन के, तो उसमें स्लोप क्या होता है, इक्वल 0 कर देते हैं. एक और रीज़न है इसके पीछे, अगर हम dy by dx इस पॉइंट पर इक्वल टू 0 करते हैं तो वहाँ पे टेंजेंट, तो जब टेंजेंट को dy by dx इक्वल टू 0 करते हैं, या अगर हम टेंजेंट का जहाँ स्लोप निकालें उसको अगर हम 0 करें, तो वो हमें एक ऐसा पॉइंट देगी जिस पर वो या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी. देख रहे हैं, अगर हम इसका यहाँ इस पॉइंट, इस फंक्शन का यहाँ पे C1 पे अगर dy by dx निकालें, उसको अगर हम 0 कर दें तो वो हमें कौन सा पॉइंट देती है, मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है, C1 पे क्या है, ये पॉइंट मैक्सिमम है. इस तरह हम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे भी क्या है, टेंजेंट पैरेलल है. इसका मतलब क्या है, स्लोप इक्वल टू 0 करो तो वो हमें ऐसे पॉइंट देती है जो या तो मैक्सिमम होंगे या मिनिमम देंगे, है ना. अगर
तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर मैक्सिमा करना है तो सबसे पहले फंक्शन गिवन फंक्शन का क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एंड वी इक्वेट द जीरो. व्हाई? बिकॉज एट द पॉइंट विच टेंजेंट आर पैरेलल, इट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स dy by dx इक्वल टू जीरो. Okay, if we first derivative test, if we apply first derivative, then equate the zero, then we will get the point at which the function will become maxima और minima. ठीक है, जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू जीरो करते हैं तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ऐसे पॉइंट देता है C1, C2, C3 जिस पर फंक्शन क्या होता है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. वो कैसे डिसाइड करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, वो हम बात है. से दैट विल डिसाइड लेटर. फर्स्ट वी हैव टू क्लियर, ये हमें सबसे पहले समझ लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जीरो क्यों करते हैं. उससे हमें ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिससे कि हमें क्या मिले? मैक्सिमा. देखिए डेरिवेटिव टेस्ट आप ग्राफ से देखिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप क्या है? इसके पैरेलल है, वो जीरो है. यहाँ पे भी स्लोप क्या है? पैरेलल है, इक्वल टू जीरो करेंगे. तो अगर dy by dx यहाँ पे जीरो करेंगे तो C2 मिलेगा. यहाँ पे dy by dx इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें C1 मिलेगा. तो आप देख रहे हैं C1 मिला, C2 मिला. लेकिन हम कैसे डिसाइड करें? हाउ कैन बी डिसाइड? if we equate the zero of the slope at this of the function, then we get the C1. If we equate the zero here, then we get the point C2. So that will give the maxima or minima point. Okay, तो what is the first derivative test? इसके लिए हम कुछ स्टेप्स हैं जो हमें इसके लिए हमें बताना है कि कौन सा मैक्सिमा होगा, कौन सा मिनिमा. जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? how we derive the first derivative test for and equate the zero. Okay, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वर्किंग रूल कैसे करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव कोई फंक्शन में कैसे बताएंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा है. हाँ, बिकॉज देयर इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ a graph for each function, so that is another method that is called the first derivative test. I already explained that why do we apply the first derivative test, because we get those point by the first derivative at which the function attain or gets the maximum and minimum value. So first derivative, first you have to get the first step, step 1. Rule for the first derivative, rule क्या है? Rule 1, step 1. How can we get this one? So f dash x equal to 0. First we have to apply first derivative test and f dash x equal to 0. f dash x equal to 0. f dash x जब भी आप इक्वल करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल ने हमें दिया है, यहाँ पे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 3x प्लस 3 ये मान लीजिए. ओके, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा. ये क्वेश्चन आ गया. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्वेश्चन है. ठीक है ना? इस पर हमें क्या निकालना है? इफ फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. ओके, नाउ वी हैव टू डू that one is given you. So first what they apply? First you apply the f dash x, step 1 equal to 0. It means 3x square यही है. It means 3x square minus 3 plus 0 equal to 0. Simplification on this we get x equal to plus 1 and minus 1. Okay, so we get the 3 when. So what after that we have to apply ये extreme point that is called the extreme point or critical point also. Okay,
अभी हमने इससे पहले बताया था कि हम क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो इक्वेट करने पे हमें ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिस पर फंक्शन क्या होता है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये हम डिसाइड कैसे करेंगे उसका स्टेप बाद में है। तो जो मान लीजिए क्वेश्चन है, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो किया, हमें इसके पॉइंट्स मिले +1 और -1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम तो ये यहाँ पे कहेंगे स्टेप 2, स्टेप सेकंड क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में एलोकेट द एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम और यू कैन से क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन, एक्सट्रीम पॉइंट है नंबर लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर दिए। सपोज दैट वी गेट ये C1, C2, C3 एंड C4 एसेट्रा। ओके, ये C4 है। ओके, इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। स्टेप सेकेंड, इसमें भी ऐसे ड्रॉ करिए। कितने हमारे नंबर आए, स्टेप 1 था हमारा, ये स्टेप सेकेंड। एलोकेट द पॉइंट, ये हमारा -1 और ये क्या है 1। ये नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया हमने इसको। ओके, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप आता है डिवाइड इनटू डिसजॉइंट इंटरवल टू द लाइन। इसमें बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे, डिसजॉइंट इंटरवल। देखिए यहाँ पे एक इंटरवल ये मिलेगा हमें, एक इंटरवल हमें ये मिलेगा, एक इंटरवल हमें ये मिलेगा। इस तरह बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे, यहाँ पे भी मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे +∞ है, सॉरी -∞ है, यहाँ पे +∞। तो एक इंटरवल ये मिला हमारा, एक इंटरवल ये मिला, एक इंटरवल हमें ये मिला और एक इंटरवल ये मिलेगा। बहुत सारे हमें इस पर इंटरवल मिल जाते हैं, ठीक है। इंटरवल ये होगा हमारा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एक ही इंटरवल होगा, ठीक है ना। -1 से 1 के पीछे कोई पॉइंट नहीं है, तो इंटरवल मिलेगा। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, हम साइन देखते हैं, ठीक है ना। साइन क्या मतलब होता है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे देखिए, तो इस क्रिटिकल पॉइंट में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप 4 था, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में चेक करेंगे साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए इसमें, अगर हम लेफ़्ट से राइट साइड पे जाते हैं तो अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। लेफ़्ट साइड मतलब किसी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में है ना, यहाँ पे क्या है पॉइंट, पॉइंट के लेफ़्ट साइड से पॉइंट के राइट साइड, बीच में पॉइंट है हमारा। If we go through from left to right, sign change will positive to and negative. तो देन इसको क्या बोलेंगे हम, अगर साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ऑफ द पॉइंट, देन वी से दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या कहलाएगा, देन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। And go through a negative to positive, that will called point of minima, ठीक है ना। इसको मिनिमा बोलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। अगर पॉजिटिव से साइन नेगेटिव हो रहा है तो और तो क्या कहेंगे उसको हम मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है इसमें तो क्या कहलाएगा मिनिमा। साइन देखें तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से, इस पॉइंट की इस तरफ और इस तरफ दिखना है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट के राइट साइड में। अगर ये साइन आता है तो मैक्सिमा होगा, इस पॉइंट के लेफ्ट से राइट साइड जाते समय नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो क्या कहलाएगा मिनिमा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको हम फर्स्ट में। अगर हम देखें यहाँ पे x से -1 के लेफ्ट में है, -1 के राइट में है,
-1 से कोई छोटी वैल्यू यहाँ पे रख दी है इसमें फंक्शन में, तो क्या होता है हमारा पॉजिटिव। -1 से छोटा रखिए यहाँ पे, तो क्या आ जाता है, -1 से छोटा रखेंगे 2 रख दिए जाए, -2 कितना आएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे रखिए इसमें वैल्यू, -1 से छोटा कोई एक वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए -2, ओके -2 रखते हैं अगर इसमें, यहाँ पे मान लीजिए कोई -2 है, यहाँ -1 से -2 बहुत सारे पॉइंट है, ये भी अप्लाई -2 यार, लेफ्ट पॉइंट ऑफ द -1, सपोज दैट विल बी -2 -3 वॉट एवर भी, -2 स्क्वायर 4 3 12 12 -3 9, ओके। तो अगर यहाँ पे रख दें -2, जी क्या आएगा 9 आएगा, 9 क्या है पॉजिटिव नंबर होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे f' क्या आता है पॉजिटिव। और -1 से राइट साइड में कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा -3 आएगा, दैट विल बी नेगेटिव। इस तरह यहाँ पे 1 की उस तरफ रखिए, 1 के बाद का कोई नंबर रखिए, 2 रख लीजिए, तब भी क्या आएगा पॉजिटिव। अब हमें चेक करना है, ये पॉइंट हमारा -1 के पॉइंट है, ये बोला ना रूल, -1 के पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते रहे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में क्या है नेगेटिव, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव राइट साइड में नेगेटिव, तो क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और 1 पे देख लीजिए, 1 के लेफ्ट साइड में यहाँ मान लीजिए 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, मान लीजिए 1 है, 1 के लेफ्ट में नेगेटिव और 1 के राइट में क्या है पॉजिटिव, तो क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। इन दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम। अब आपको पता है कि -1 क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और 1 ये मिनिमा, और 1 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी -1 पर, अगर फंक्शन में -1 रख देंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ -1 in the function that we get the maximum value, we put the value of 1 in the function that we get the minimum value of the function, okay। this is the first derivative test। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग इस तरह हम लोग वैल्यू फंक्शन निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे, इसको स्टेप है यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसे जैसे भी हम करते हैं। पहला स्टेप है इसका स्टेप 1, क्या करेंगे f'(x) इक्वल टू 0, इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, f'(x) इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। f'(x) 0 क्यों करते हैं, उससे हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिसपे फंक्शन क्या होता है मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, ठीक है। अभी f'(x) इक्वल टू 0 वी गेट एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पे C1 C2 C3 एक्सेट्रा, है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या है, इफ वी अप्लाई द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेट द 0 वी गेट एक्सट्रीम पॉइंट से C1 C2 एंड C3। केस 1 देन केस 1 अभी यूज द सेकेंड डेरिवेटिव स्टेप 2 सॉरी स्टेप 2 स्टेप 2 सेकेंड फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव f'(x). स्टेप 2 फाइंड डेरिवेटिव एट different critical points, different extreme points, मान लीजिए एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हम स्टेप निकालते हैं तो क्या होगा, सपोज दैट C1 है एफ, और फिर केस बनते हैं केस 1
डिफरेंट पॉइंट्स रखते हैं इस पर हम सेकंड डेरिवेटिव में निकाल कर, सेकंड डेरिवेटिव निकाला उसका रखा उसमें। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स लिया हमने, एफ एक्स एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे दिया है 3x4 4x3, ये एग्जांपल ले लेते हैं साथ में, 4x3 -12x² + 12, तो ये लिया। सपोज दैट भी ये दे, तो स्टेप 1 क्या हमारा, f' = 0, तो f' निकालिए, f' = 12x3 + 12x² -24x + 0 = 0. On simplification we get the different points. सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, x³ + x² -2x = 0. फैक्टराइज कर लीजिए इसका, तो इसके फैक्टर करेंगे इसमें, तो फैक्टर करके आएंगे x² + 2x और x - 1 = 0. ये मिले हमको। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले हमारे, तो इसके 0 पॉइंट मिलेंगे, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। x = क्या मिलेगा, एक तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए और लिख लीजिए, जैसे x + 2 x - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें x = क्या मिलेगा, 0 1 और -2, ये मिलेंगे 3 पॉइंट्स, 0 1 एंड -2। साइन, हम साइन चेक करेंगे इसमें, अब क्या निकालेंगे, ये हमारा स्टेप 1। अब उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है, f' निकालिए, सेकंड डैश, f' क्या होगा, डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव, स्टेप 2, दैट इज द स्टेप सेकंड। ये था स्टेप फर्स्ट, ये वाला, ये फर्स्ट था, ये सेकंड वाला स्टेप है। f' निकालिए, इसका कितना आएगा, इसका सेकंड f' 36x² + 24x - 24, ये आया, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये आया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या है, केस 1 क्या है, फर्स्ट f'(x) क्या निकालेंगे हम, 0 निकालिए, फिर सेकंड f', 0 के बाद 1 पे निकालिए, थर्ड है f', -2 पर निकालेंगे, ये निकालो। इस पर क्या है, अब इस पर वैल्यू निकालिए, इस पर अलग अलग, f' 0 निकालते हैं, वो कितना आता है हमारा, उस पर -24 चेक कर लेंगे, यहाँ पे 36 0 + 24 0 -24 = -24, -24 <0, ओके। 1 निकाल लीजिए इस पर, 36 1 + 24 1 -24, दैट इज इक्वल टू 36 आएगा 1 निकालने पर। और एक और निकालिए, ये तीसरा केस है, -2 पे, -2 पे कितना होगा, इसका है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना निकलेगा, 36 2 आएगा कितना, 72, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो ये, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके केस है, हमने बताया गया, तो इसका कुछ रूल है। केस 1 इफ़ f'(x), ठीक है, f'(x) C मान लीजिए, कोई C पॉइंट है, जैसे वहाँ वाले C1 C2 C मान लो, यहाँ पे से C, इफ f'(c) ग्रेटर देन 0, अगर 0 से
बड़ा आता है, देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. Okay, f dash c greater than 0 is called the point of minima. Case 2, if f dash c less than 0, then c is point of maxima. उल्टा है, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा. थर्ड भी ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, इफ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू 0, एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव क्या है इक्वल टू 0, देन apply first derivative test rule. ठीक है ना. ये फंक्शन these are apply only where that condition when the second derivative either greater than 0 or less than 0. If equal to 0, then we cannot say that about the minima or maxima. Then we have to apply the first derivative test rule according to the previous concept. ओके, अगर कोई सेकंड डेरिवेटिव या तो 0 नेगेटिव आता है तो ये होगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है. जिस पॉइंट पे आता है उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं उसको, और उस पर फंक्शन की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था. ठीक है, साइन चेक करना है, उसके क्रिटिकल पॉइंट में लंबा लाइन ड्रॉ करके साइन चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा की मिनिमा उसी अकॉर्डिंग करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो ऑन द बेस तो मोस्टली वी प्रेफर टू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना. क्वेश्चन नंबर 1 से अपने जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करना है, पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालिए, उसकी हेल्प से आपको क्या पॉइंट्स मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे. क्रिटिकल पॉइंट जिसके बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना. एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे 0, 1 और -2 जैसे यहाँ पे मिले. उसके बाद जो पॉइंट आते हैं उसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है. जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ना आपका, ये आया था ना, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसी का करना है हमें सेकंड डेरिवेटिव. जो भी आए इसका क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. फिर उसको क्या करेंगे, निकाला हमने, उसमें जो वैल्यू रखेंगे पॉइंट्स की, 0 जो भी क्रिटिकल, फिर उसमें क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे 0, 1, -2, वो ऐसे आएंगे आपके पास. अगर वो लेस देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 है. ठीक है ना, ये तो हमने बताया ना. तो लेस देन 0 है तो और ग्रेटर देन 0 है. तो हमें क्या पूछा है, मिनिमा किस पॉइंट पे, मैक्सिमा किस पॉइंट. तो यहाँ पे देखेंगे लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा, क्या है ना. सो यू कैन से दैट एट x इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लेस देन 0 तो मैक्सिमा. फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है. x इक्वल टू 1 पर ये क्या है, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, और x इक्वल टू -2 पर क्या है, इस पर क्या है -2 पर मिनिमा. ठीक है, तो इस तरह हमें ये बताएंगे कि मैक्सिमा है मिनिमा है और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, इस तरह हम लोग वैल्यू फंक्शन की निकालेंगे. so, आपको यही मेथड यूज़ करना है, ये वाला. मोस्टली वी हैव टू अप्लाई होल एक्सरसाइज थ्रू आउट द होल एक्सरसाइज दिस वन कॉन्सेप्ट.